Assalamu alaikum students, good evening. Okay, today I just discussed yesterday your model paper for your examination 2026. So we just have a look, and for 5 minutes I'll discuss and I will revise the model paper. Then today we have a really important topic for you. It's for 10 marks questions, detailed question answer section C, and I would discuss it after 5 minutes. First of all, we would just do revise. Some of the students they joined today, so I warm welcome to all of you. Okay, let's start the class. Okay, model paper 2026, English paper 2. The first section A, MCQs, multiple choice questions. You have the multiple choice question for 20 marks. Okay, prose, poetry, novel, and grammar. For this is the purely knowledge based. You have the statement or sentence, and you have the four options there, and you will select the one suitable answer. Each MCQ carry 1 mark, like you have already studied and you have already done in your first year class. Okay, next section B is really important for you because your new book, and they have changed a lot. Like in first year class, you have the subsections. Subsection 1, subsection 2, 3, 4, 5, 4 till 4. It was in Roman, like 1 to 4 subsection. But we have in this final exam, section B, we have the short question answers, but we have two subsections only, B1 and B2. What is B1? B1, your textbook question answer, 3 to 4 lines you have to write down because it's mentioned that short answer questions. Okay. Attempt 6-part questions from section B1. B1, you have 10 questions in B1, and you out of 10 questions you would attempt 6 questions. Okay, so 4 questions you have the choice of 4 questions. 4 सवाल होगी आपके पास choice होगी. 6 question 10 में से आपने attempt करने B1 से. Each question carry equal marks, like 4 marks. So 6 by 4, 24. So your section B1 would be marks 24. Okay. This is B1. It's really simple. That most of the students in first year class they got confused कि which subsection, subpart and किस part से हमें कितने questions attempt करने हैं. But this is your life is really relaxed now, and it's really simple. Like you have the part B1 and 6 questions you would attempt. It would be from your poetry, your text, your comprehension, your text, poetry and novel. Okay, you have the novel, the great expectations. तो novel से questions answer होंगे, आपके chapters से होंगे, unit से, और आपके poetry से question answer होंगे. Mix and match 10 दिए जाएंगे. Time by time I would discuss and I would share the important questions as well. Okay, let's start the next topic. The next thing is that really important, B2. You have to understand B2. B2 is the grammar portion. As I told you, you have your B, section B is distributed in 2 parts. One is B1. B1 is your question answer, short question answers, and B2 is your purely for grammar. Okay. In your textbook, there are so many topics, so we would cover these all topics, and I would discuss the topics. We would do the exercises as well, and we will do practice on board as well. And then we have the B2. B2, there the first question is really simple. Like this is a vocabulary building and vocabulary, phrasal verbs, words. You have to just matching columns. You have 4 to 5 words in a box in column A, and there's a column B. Most of the meanings and synonyms would be given for these words, and you have to match all of these. You match it, or you just write down on the next, like. Okay, so this is the phrasal verbs might be following word, phrasal verbs, column and B matching. 4 to 5 words it would be given, 4 marks easily you will. So any of the student whose reading and vocabulary is really good, आपको मैं practice भी कराऊंगा और कुछ हमारी vocabulary भी discuss करेंगे, तो inshallah you can easily gain these 4 marks. Next question is, use any 4 of the following idioms in sentences. This is really good and interested because if you want to speak good English, proper English, so you should know the idioms, idiomatic phrases,
phrasal verbs. These are really important. Whatever you want to say in detail in one sentence or one phrase or idiomatic phrase, you can easily explain it. So this is really good, and it really common in our society. Most of the time we use these idiomatic and these idioms. So I would discuss all of the important idioms as well, and I would explain it, and then we make the sentences as well. Okay, so this is your whole grammar portion. You have 5 questions altogether, and you have to attempt 4 questions at least. इसमें choice कम है, you have only one choice. एक question की choice है, you would have the 5 questions, and you have to attempt 4 questions at least. 4 by 4 16, 16 and 26 40. आपका सेक्शन भी 40 मार्क्स का है. दिस इज रियली हैवी. इसमें मार्क्स गेन करना ही आपके इंग्लिश के जो है मार्किंग को बढ़ाएगा. और बी और सी इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ आर और एज यू नो दैट लिटरेचर जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश हो उर्दू हो, दे आर टू लेंथी. तो यू हैव टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल. ओके, तो कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस. गुड. इफ़ यू रिमेंबर 9th क्लास में आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे. फर्स्ट सेकंड कंडीशनल्स के सेंटेंसेस बनाए थे आपने. इसमें 0 कंडीशनल भी है, 1 कंडीशनल, सेकंड, थर्ड. तो यूं कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. तो टाइम बीइंग I would discuss the formulas of the conditional sentences, how to make conditional sentences and difference of the conditional. आपको एक दिया जाएगा फ्रेज, आपको अगला जो है फ्रेज वो कंप्लीट करना पड़ेगा क्लोज, यानी कि इफ़ के साथ वो क्लोज होगा या विदाउट इफ़ होगा. या तो आपको कंडीशन दी जाएगी या उसका रीज़न दिया जाएगा. तो आपको ये इफ़ कंडीशनल्स भी कहलाते हैं. तो ये इफ़ के साथ होते हैं. तो 2 क्लोजेज होते हैं इसमें इन्वॉल्व. एक आपको दिया होगा, दूसरा आपको कंप्लीट करना होगा. तो ये भी आपको about 4 sentences दिए जाएंगे, आपको उन्हें कंप्लीट करना होगा. तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु लर्न रियली गुड कंडीशनल सेंटेंसेस, तो दे कैन डू इजीली. बट I hope inshallah okay, we will do the practice in upcoming classes. I will discuss the conditional sentences as well. Next, the last but the 4th question is do as directed. इससे भी आपका बड़ा कनेक्शन है. 9th में, 10th में, आप फर्स्ट ईयर में डू एज डायरेक्टेड 9, 10 में आप करते हुए आए हैं कि आपको मल्टीपल ग्रामेटिकल सेंटेंस दिए होंगे और आगे ब्रैकेट में आपको उसकी डायरेक्शन दी हुई है कि इंसर्ट प्रीपोजिशन, इंसर्ट आर्टिकल, इंसर्ट मॉडल वर्ब्स और चेंज द सेंटेंस किस में चेंज करना है. उसी तरह ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है. तो वट एवर डू इज डायरेक्टेड में क्या है, ब्रैकेट में आपको डायरेक्शंस दी हुई होंगी. ये भी 4 to 5 सेंटेंसेस आएंगे, आपको ग्रामेटिकल बनाने होंगे. इंशाल्लाह वी विल डू प्रैक्टिस वेल. इन सब को नीड प्रैक्टिस. तो इनके पहले हम फार्मूलाज समझेंगे, इनको स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर इनको बनाएंगे. और idioms, most of the idioms and phrasal verbs I will discuss about nearly 30 to 40 idiomatic phrasal verbs, idiomatic phrases and phrasal verbs I would discuss, and inshallah I hope that you will easily cover this inshallah. Spot the errors and rectify the following faulty expressions. कुछ आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, नाउन प्रोनाउन की, प्रीपोजिशन आर्टिकल की. तो आपको स्पॉट द एरर्स, गलती पकड़ के उसे रेक्टिफाई करना है. रेक्टिफाई मतलब उसको करेक्ट करना है, उसकी गलती को सही करना है, दुरुस्त करना है. तो दीज आर द 5 क्वेश्चन. दीज आर कनेक्टेड टू योर B2 सेक्शन. बी का जो B2 है 16 मार्क्स का है उसका है. ईच क्वेश्चन कैरी 4 सेंटेंसेस ABCD. अगर वर्ड्स आएंगे मैचिंग के तो भी 4 दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे. ये भी 4 होंगे. 4 इडियम्स होंगे, इडियमेटिक फ्रेजेस होंगे, और आपके कंडीशनल सेंटेंसेस भी 4 होंगे, उनको कंप्लीट करना होगा. और आपके जैसे आपने 9th क्लास में बाकायदा एक्सरसाइज है पेज नंबर 11 पर कि कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको इनकम्प्लीट लिखा है, आपने उसे कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल सेंटेंस. एज आई एक्सप्लेन यू, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. नेक्स्ट, स्पॉट द एरर्स एंड रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्टी सेंटेंसेस. एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे फॉल्टी, उनमें गलतियां होगी ग्रामेटिकली, उन्हें आपको करेक्ट करना है. तो देर आर दीज 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं. तो दैट्स डन. ये आपका सेक्शन बी हो गया. अब आ जाए सेक्शन सी पे. Why I'm discussing again? Yesterday I discussed in detail, but yesterday the class was combined. So some of the students got confused कि सर आपने मॉडल पेपर जो है वो दोनों का कंबाइंड डिस्कस किया है. तो देयर वाज कन्फ्यूजन, डेफिनेटली कन्फ्यूजन रहती भी है.
और आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं कि मैं ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ या ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन कमेंट ऑन इट और यू कैन शेयर योर थॉट्स एज वेल। और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप पहले इनिशियली पढ़ना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है या पॉइंट है जिसको आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो यू वुड राइट ऑन द कमेंट्स। ओके, सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। इसमें भी वही सीन है कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इसमें आपको 3, 4, 5, 6 इसमें 4 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, लेकिन चारों अटेम्प्ट करने। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इन चारों क्वेश्चंस के साथ में चॉइस है और लग के, जैसे फर्स्ट में जो है आपको राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट टू सीक एडमिशन इन MBA ऑन स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। अभी सैंपल के लिए जो आपके मॉडल पेपर में सवाल था वही मैंने इसको एडअप किया है कि आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें आप बिल्कुल, इसका एक मेथड है, तरीका है, आई वुड डिस्कस टू यू और आई विल एग्जांपल भी दूंगा आपको। इस स्टेटमेंट की तरह ही बनेगा पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें आप अपना लिखोगे कि भाई मैं इस एडमिशन लेना चाहता हूँ और क्यों स्कॉलरशिप मुझे चाहिए, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी स्टडी कैसे हुई, मेरी पढ़ाई का क्या स्टेटस है, रिसोर्सेज हैं नहीं है, तो इसको, या फिर और यू हैव द और देयर इज अ चॉइस, ईमेल, राइट एन ईमेल। Already you have studied in your first year class formal or informal email. There are 2 types of email, formal email and informal email. तो आप अपने फर्स्ट ईयर क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ईमेल्स पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसका पैटर्न होगा ईमेल का, उसकी राइटिंग क्या है, उसमें वोकेबलरी कैसे यूज़ होती है, कौन से सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं उसमें फॉर्मल में, और इनफॉर्मल कैसे लिखनी है। और ईमेल आपको पता है लेटर का ही दूसरा वर्जन है, क्योंकि लेटर में हम एड्रेस लिखते हैं, पोस्टल एड्रेस, और लेटर और ईमेल में यही फ़र्क है कि लेटर जो है हम टाइप करके लिख कर किसी को पोस्ट करते हैं, और ईमेल हम ईमेल आईडी के थ्रू भेजते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ओनली। स्टार्टिंग में जो ईमेल आईडी डालने वो ईमेल में डालते हैं, बाकी ये इसमें पूरी वही लेटर ड्राफ्टिंग होती है जो फॉर्मल लेटर्स में होती है या इनफॉर्मल लेटर्स में होती है। इनका नाम अब फॉर्मल ईमेल, एंड क्योंकि अब डिजिटल दौर है, AI का दौर है और मोबाइल्स और डिजिटल गैजेट्स का दौर है, तो वी सेंड ईच एंड एवरीथिंग जो है ऑनलाइन। नेक्स्ट, तो पहले क्वेश्चन में क्या चॉइस है हमारे पास, या पर्सनल स्टेटमेंट लिखें या आप फॉर्मल या इनफॉर्मल ईमेल दी जाएगी आपको, मोस्टली आपको फॉर्मल ईमेल आएगी। नेक्स्ट, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ऐसे लिखना है, सही है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ये भी 10 मार्क्स का है, ये सवाल भी 10 मार्क्स का है, पर्सनल स्टेटमेंट या ईमेल दोनों में से एक करें, और आपको ऐसे लिखना है। अब ऐसे ये है कि इसमें आपको जो नई चीज़ दी है वो ये है, एज यू नो दैट के फर्स्ट ईयर क्लास में we discussed the compare and contrast essay. You studied already, you have read already about compare and contrast essay. You know there are so many types of essays like descriptive, narrative, argumentative, compare and contrast essay, biography. Okay, किसी की लाइफ पर आप लिखते हैं तो बायोग्राफी कहलाती है, तो उसको भी जो है वो पर्सनल में आता है। तो अब क्या है, ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब मैंने टॉपिक्स नहीं लिखे, आई वुड डिस्कस द टॉपिक लेटर ऑन, क्योंकि टुडे माय मेन टॉपिक इज टुडेज यही है कि हम आज आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को समझेंगे कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कहते किसे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की क्या टाइप्स हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें एडअप होती हैं, क्या क्या इनमें हम किस किस जो है चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। ओके, फर्स्ट ईयर में वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, बट सेकेंड ईयर यू वुड हैव द, अब आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको 2 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे दिए हुए और 2 डिस्क्रिप्टिव भी दिए हैं, तो डजेंट मैटर, मतलब ये इट्स नॉट अ फिक्स कि आपको सिर्फ चारों चॉइस जो है 3 या 4 की चॉइस वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की आए, आपको 2 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आ सकते हैं और 2 जो है आपको डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव भी आ सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अच्छा, आपको इस बार मॉडल पेपर जो सेकेंड ईयर का है, क्योंकि आपकी नई बुक है, तो यू गॉट एडवांटेज कि दे आर गोइंग टू गिव यू द ट्रांसलेशन। 9-10 में आप कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है इनटू उर्दू और सिंधी, क्योंकि वी लिव इन सिंध एंड दिस द स्टेट ऑफ सिंध, तो वी हैव द 2, दिस द लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ सिंध। तो सिंधी ज़बान में जो हमारे सिंधी बच्चे हैं वो सिंधी में प्रीफर करते हैं, और जो हमारे उर्दू को जिनकी है ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग है और उर्दू लैंग्वेज है उनकी, तो वो उर्दू को प्रीफर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपको एडवांटेज मिला है कि इस आपके सेक्शन सी में डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन आंसर्स में, आंसर क्वेश्चंस में आपको CV राइटिंग एंड कवर लेटर CV राइटिंग नहीं दी।
जो आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, लेकिन अब आपको नहीं दी, आपको ट्रांसलेशन डाली है. There's another thing is really good, unseen comprehension. 9-10 में आपको पैसेज आता है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर वहां से सेलेक्ट करने होते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट सॉरी एक्सक्यूज मी. इन 6 क्वेश्चन में भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर चॉइस है, वेदर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स और मेक अ प्रीसी. प्रीसी मीन यू शॉर्ट एंड यू समराइज द पैसेज, यानी एक लॉन्ग पैसेज है 7 to 8 लाइंस का, उसका 1/3 बनाना है. समरी भी मैं सिखा दूंगा, प्रीसी राइटिंग कैसे होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और प्रीसी राइटिंग को एक्सप्लेन भी करेंगे. अच्छा, अब पैसेज एक दिया हुआ है, उसी पैसेज को या तो आपने प्रीसी राइटिंग करनी है यानी इसको शॉर्ट करना है, समराइज करना है, या फिर उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको जैसे आप 9-10 में कर चुके हैं, बट दैट वुड बी अनसीन. व्हाट डज अनसीन मीन? सीन मीन कि आपकी टेक्स्ट बुक से दे वुड पिक द पैसेज फ्रॉम, जैसे फर्स्ट ईयर के जो मॉडल पेपर आया है उसमें उनको सीन कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, यानी टेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक से उनके ही पैसेज को निकाला जाएगा, पिक किया जाएगा. बट अनसीन बिकॉज यू आर द सीनियर नाउ एंड यू आर इन द 12th ग्रेड, तो आपके लिए उन्होंने कहीं से भी किसी भी बुक, आर्टिकल, किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी कहीं भी जर्नल या मैगजीन से कोई एक पैसेज निकालेंगे और वो अनसीन होगा, जो आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होगा. तो दैट इज़ द प्रैक्टिस. आई वुड शो यू कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड हाउ टू मेक अ प्रीसी. तो दैट्स इट, दैट्स ऑल. दिस इज योर मॉडल पेपर. सेक्शन A is MCQs. Section B, there are two part of section B, B1 and B2. B1 is related to your textbook, question answers, play, poetry and chapters, and your B2 is purely depend on the grammar. It's all covered, your grammar. It's given in your textbook as well. We would discuss here and we would do practice as well, like narrations, like modal verbs, conditional sentences, each and every topic day by day, timely in these 2 to 3 weeks. Inshallah I would cover and I will do my best inshallah. जी, फिर आपका आ गया अनसीन की मैं आपको एक प्रैक्टिस करा दूंगा. ट्रांसलेशन के भी लिए कहीं से आपको पैसेज या पैराग्राफ दिया जाएगा. जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी है, जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो उसको ट्रांसलेट कर सकेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ मैं आई वुड शेयर द टिप्स एंड टेक्निक्स एज वेल. Okay, that's it, that's all. Okay, today what we are going to do, we are going to discuss today, write an essay on the following topics. Argumentative essay, जो आपको essays दिए गए हैं. Let me show you the model papers argumentative essay. Okay, there are topics of argumentative essay as well. Okay ji. Okay, your topics are given in your argumentative essays are okay, these are your topics. Okay, write an essay on the following topics. Is fast food responsible for health issues among teenagers? क्या जो फास्ट फूड है, जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, बिरयानी, ये बर्गर्स, पिज़्ज़ाज वगैरह जितने भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड फास्ट फूड, जो क्विकली इजी बिजी खाई जाती है, जिसमें ब्रोस्ट आ गए, बर्गर आ गए, पिज़्ज़ास आ गए. ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ इश्यूज. क्या छोटे बच्चों के लिए बड़े ये मसले पैदा करते हैं हेल्थ इश्यूज? क्या है? क्वेश्चन मार्क. एनी ऑफ द स्टेटमेंट which given with the question mark, that is called argumentative essay. क्या आप इसकी फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट में? फेवर में हैं तो आप उसका स्टेटमेंट दें, उसका प्रूफ दें, उसकी एग्जांपल्स दें और उसकी लॉजिक बताएं कि आप इसकी फेवर में क्यों हैं, और अगर आपके इसके अगेंस्ट है तो उसको भी आपने उसको एक्सप्लेन करना है. यानी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपको अपना ओपिनियन स्टेटमेंट्स के थ्रू, प्रूफ के थ्रू देना होता है. तो बहुत अच्छा टॉपिक है. दैट इज गिवन टू योर फ्रॉम योर मॉडल, आई पिक फ्रॉम योर मॉडल पेपर, और ये आपके मॉडल पेपर में दिए हैं इस बार. हो सकता है माइट भी ये भी रिपीट हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस दीज आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज, then it will help you out for the further new topics. Okay, next, is our examination system a true test of intelligence? क्या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो वाकई सही
हमारा टेस्ट ले रहा है कि नहीं। अब आप ये देखें, लेट सपोज कि एक बच्चा पूरा साल सिलेबस पढ़े और सिर्फ एक बार फाइनल एग्जाम हो और उस पूरे सिलेबस का सिर्फ 20 या 15 या 20% आए, फिर उस 20% में से भी बच्चा 33 या 40 मार्क्स लेके पास हो जाए, तो क्या ये जस्टिफाइंग है या जस्टिफाई करता है आपके सिलेबस को? फिर क्या सभी सब्जेक्ट्स में थ्योरी है? नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस अभी बोर्ड ने बहुत अच्छा किया कि एमसीक्यूज 20 मार्क्स के डाल दिए हैं। इंग्लिश जो है प्रॉपर एक लिटरेचर में ग्रामर भी एडअप की है, लैंग्वेज भी ऐड की है, लेकिन फिर भी हम थ्रू आउट फ्रॉम द छोटी क्लासों से हम पढ़ रहे हैं अगर अकॉर्डिंग टू द कराची बोर्ड, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बच्चों में रीडिंग के, राइटिंग के, स्पीकिंग के इश्यूज हैं। यानी कि हम 10 साल पढ़ने के बाद भी इंग्लिश, उर्दू, सिंधी हम उस पर जो है हमें कमांड नहीं होती, तो दैट इज़ रियली अलार्मिंग। बट आई जस्ट जनरली डिस्कसिंग, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई एम डिस्कसिंग कि दैट इज़ द पॉइंट कि ये हमारे साथ कुछ है जो इस पर हम लिख सकते हैं। आई विल डिस्कस लेटर ऑन। एनालाइज हाउ स्मार्टफोन्स अफेक्ट स्टडी हैबिट्स। अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव। एनालाइज, आपको एनालाइज करना है। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्गुमेंटेटिव एसे एज वेल। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? एनालाइज, जस्टिफाई। तो ये एनालाइज का मतलब है कि आपको उस पर तजिया करना है, तो दैट वुड बी द आर्गुमेंटेटिव एसे एज वेल। स्मार्टफोन्स अफेक्ट स्टडी, क्या कहते हैं, स्टडी हैबिट्स। आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती। आज की जो जनरेशन है उसमें रीडिंग का फुकदान है, लैक ऑफ रीडिंग है। और दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं या जितने भी लोग टैलेंटेड लोग हैं वो रीडिंग करते हैं। रीडर्स आर द लीडर्स, जो रीडर्स हैं। और इन हमारे बच्चों की स्क्रीन ऑन स्क्रीन बहुत टाइम लगता है, जिससे आई साइड पे भी असर पड़ता है, माइंड डाइवर्जन भी होता है। फिर दे आर नॉट गुड लिसनर्स। जब एक को स्क्रीन पर सुनने की, देखने की आदत हो जाती है, तो फिजिकली लोगों को सुन तो लेते हैं लेकिन दे कांट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट क्विक लर्नर, दे आर नॉट अ फास्ट लर्नर, दे आर नॉट अ एक्टिव लर्नर। तो ये चीज़ की लैकिंग होती है। विल डिस्कस लेटर ऑन। एनालाइज हाउ एआई हैज चेंज द वे स्टूडेंट्स लर्न। इसमें भी क्या वर्ड आया? एनालाइज। तो एनालाइज मीन हाउ एआई हैज चेंज द वे। ये चारों टॉपिक बहुत ज़बरदस्त हैं और आपको मॉडल पेपर्स में दिए हुए, तो आई होप के माइट बी इनमें से दो, दे वुड पिक 2 ऑफ द टॉपिक्स एंड दे वुड गिव यू द अपकमिंग एग्जाम। दैट इज पॉसिबल। और मुझे लग रहा है बहुत सारी ग्रामर और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 30 to 40% ये पेपर आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए, कोई इसमें वो नहीं है। चलें, लेट्स स्टार्ट। वी डिस्कस द व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव एसे, डिफाइन आर्गुमेंटेटिव एसे, इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर कैसे इसको लिखना जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है। जब तक वी डोंट अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ राइटिंग तो वी कांट राइट। फिर हम उसी तरह डिस्क्रिप्टिव की तरह लिखते रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव का अलग मेथड है, नैरेटिव का अलग है, बायोग्राफी अलग तरीका होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मेथड और उसका अलग है। आप जैसे फर्स्ट ईयर में यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास के कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है पैटर्न अलग है, उसी तरह आर्गुमेंटेटिव ऐसे का भी पैटर्न, there is a different pattern. Okay, let's start from the what is argumentative essay. Okay ji, you can see on the screen argumentative essay. An argumentative essay, also called an argumentative essay, argument, it's mean you do the argument there. Okay, okay ji, argumentative essay. An argument essay, also called argumentative essay as well, is a type of writing in which the writer presents a clear position or opinion on a topic. वो अपनी position बताता है कि whether I am in favor of, whether I am in against of। यानी कि मैं इस टॉपिक की, जो अभी मैंने कुछ सैंपल के मॉडल पेपर से बताया आपको टॉपिक्स, तो उसमें क्या था कि क्या फास्ट फूड जो है छोटे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्या जो है मोबाइल जो है उनकी स्टडी की जो है पढ़ाई को इफेक्ट करता है। तो ये दोनों, और फिर के बाद एनालाइज वाले आए, तो दीज वर द आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बेसिकली। ओके, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में यही होता है बेटा कि आपका जो है
उसमें हम एक साइड जो हम उसको करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको एविडेंस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू, ओपिनियन के थ्रू और फैक्ट्स के थ्रू, जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें सर्वेज दिए जाते हैं कि कितने % लोग ये इस्तेमाल करते हैं, कितने % लोग क्या सोचते हैं। तो एक बड़ा सा 40 और 30 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर बनाते हैं कि मेरी थीसिस चल रहे हैं, मेरा जो है प्रोजेक्ट है, तो काइंडली इस लिंक को खोलें और इन सवालों को सॉल्व करें। तो उनसे वो एक डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि कितने लोग इसकी फेवर में हैं, कितने लोग कैसा सोचते हैं, और 100 में से 50% लोग कितना सोचते हैं, 20% सोच के क्या जवाब आते हैं। फिर उन जवाब को कलेक्टिविटी कनेक्ट करके एक राय कायम की जाती है कि मोस्टली लोग इनके बारे में या इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो उसी तरह जो है फैक्ट्स दुनिया में रिजल्ट्स, यानी कितने लोगों को एक चीज़ ने अफेक्ट किया है, कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ है, जो आपका स्टेटमेंट होगा। लेट सपोज अगर आप फास्ट फूड का लेते हैं तो वाकई बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम पिज़्ज़ा, ब्रोस्ट, बर्गर्स इनको डाइजेस्ट करने में लगता है। और ऑलरेडी जब एक बच्चा है छोटा तो उसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गेन्स भी छोटे हैं, तो फिर उसके अंदर जो खाना जाता है वो 4 से 6 घंटे लेता है, जो इट्स टू मच। उसी तरह उनका इम्यून सिस्टम, उनकी जो बॉडी की ताकत है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, जिससे उनको बाहर का वेदर और जो भी क्लाइमेट चेंज चल रहा है बच्चों को जल्दी इफेक्ट करता है और उन्हें बीमारी होती है, बुखार, शदीद टेम्परेचर हो जाता है, उनको फ्लू होता है, उनको पेट में दर्द का और बाकी इश्यूज आते हैं, आयरन। और आपको देखिए पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हर छोटे बच्चे को कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी है। एनीवे, तो ये फैक्ट्स कहलाते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप न्यूज़ से, आर्टिकल से और दुनिया के मुख्तलिफ जो है एनालाइज करते हैं या रिसर्च या सर्वेज आते हैं उससे लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इट्स रियली गुड इन फ्यूचर, और आप इस पर अपने तज्जिए लिख सकते हैं। और अगर किसी को मीडिया साइंस या सहाफ़त में, जर्नलिज्म में जाने का है तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज़ रियली हेल्पफुल फॉर देम। अगर अभी से आप इस पर प्रैक्टिस करें और इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ें तो इट वुड इंक्रीज योर नॉलेज एंड इट वुड गिव यू द चांस टू चूज़ अ वन ऑप्शन। आपके पास कैसे आपको फैक्ट्स बयान करने, कैसे, और परसुएट द रीडर टू एग्री विद द राइटर्स व्यू पॉइंट। और सबसे, राइटिंग इज आर्ट। दुनिया में पहले इनकलाब किताबों से ही आया है। जो राइटर्स लिखते थे उन्होंने ट्रेंड चेंज किया, लोगों की सोच को चेंज किया, लोगों के लिबास, लोगों के रहन सहन को चेंज किया। इसीलिए जिस तरह नबियों पर भी क्या हमारे नाजिल हुई, हॉली बुक्स, 4 आसमानी किताबें अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर किताबें, और वो आज हम कुरान मजीद जो मोजिज़ा भी है हम उसको पढ़ रहे हैं। क्यों? तो इसका मतलब एक किताब का इंसान की शख्सियत से, इंसान की पर्सनैलिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और आपकी राइटिंग में इतना ताकत हो कि आप लोगों का माइंड चेंज कर दें। और राइटिंग इज़ अ गुड थिंग, और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे यही करता है कि जो आपको स्टेटमेंट दिया गया आप उसकी फेवर में है तो क्यों हो, तो आप उसको दलाइल के ज़रिए, स्टेटमेंट के ज़रिए, ओपिनियन के ज़रिए, फैक्ट्स के ज़रिए, और जो आप रियल लाइफ में एग्जांपल्स लेंगे उनके ज़रिए आप उनको परसू करेंगे, आमादा करेंगे, परसू द रीडर। ओके, तो आर्गुमेंट ऐसे प्रेजेंट द राइटर्स व्यू पॉइंट इन अ गिवन क्वेश्चंस थ्रू द यूज ऑफ रीजनिंग। एनालाइज भी इसी में आता है, सही है। एविडेंस, एग्जाम्पल्स एंड डीप एनालिसिस फॉलो द रिक्वायर्ड रिगार्डिंग। अच्छा, अब आ जाए आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जो है ये एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है। क्या है? दिस अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। इसमें क्या चीजें होनी चाहिए? स्टेट्स अ क्लियर क्लेम। पहले तो अपना दावा जो क्लेम किया है उसको क्लियर रखना है आपने, उसके बाद आपको एविडेंस एंड रीजन देने। ये स्टेपिंग बता रहा हूं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को लिखने की। और लेटर ऑन वी विल आई विल शो यू द विच टॉपिक्स वी डिस्कस्ड फ्रॉम योर मॉडल पेपर। आई विल शो द वन ऑफ द आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, सैंपल आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एज वेल, कि कैसा होता है। ओके, मे एड्रेस अपोजिंग व्यूज, हो सकता है अपोजिंग भी उसमें लिखा जाए, अब उसके उस स्टेटमेंट के अपोज भी हो तो उसमें भी आपको हो सकता है। और उसमें कुछ बातें यूं नहीं होता कि एक ही वन साइड वो चीज़ बात सही हो, अगर वो अपोज भी हो सकती है तो उसको भी आपने हाईलाइट करना है कि इसमें ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन ये चीज़ें, जहाँ ज़्यादा आपका झुकाव होगा
60-40, तो उसमें 60% आपका है तो उसमें आप ज़्यादा ओपिनियन और ज़्यादा फैक्ट्स दे सकेंगे, और अगर 20-40 या 10% उसकी जो अगेंस्ट भी हैं तो वो भी मेंशन करें आर्गुमेंटेटिव ऐसे में। एम्स टू कन्विंस द रीडर, असल चीज़ है आपने कन्विंस करना है रीडर को। ओके, फिर उसकी टाइप्स क्या है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की देख लेंगे। एक तो क्लासिकल टाइप है एरिस्टोटेलियन। एरिस्टोटेल आप जानते हैं, एरिस्टोटेल अरस्तु कहते हैं इनको, बहुत बड़े जो है फिलोसोफर थे, बहुत बड़े जो है उन्होंने जो है ये दिया था क्लासिक मेथड, ये मोस्ट कॉमन है और इसमें क्लियरली क्या होता है बयान किया जाता है ओपिनियन और सपोर्ट दी जाती है एविडेंस। एविडेंस बहुत ज़रूरी है, सही है। दुनिया में किसी भी बात को, किसी भी राइटिंग को साबित करने के लिए आपको अपना जो है दलाइल और अपना एविडेंस देना है। जिस तरह कोर्ट में जज एविडेंस मांगता है तो इस एविडेंस से मुराद ये कि अगर आप इस चीज़ की फेवर में हो तो आपने ये बताना है कि क्यों फेवर में हो, कि दुनिया का भाई इतने महीने का, इतने साल का, या लास्ट ईयर का या पिछले महीने का सर्वे ये बताता है कि इतने बच्चे बीमार हुए फास्ट फूड खाने से। ये सर्वे ये बताता है कि इतने बच्चों की अब जो 5 साल से छोटे बच्चों की ज़्यादा आंखें ख़राब हो रही हैं, ज़्यादा सेलफोन और ये डिजिटल जो है गैजेट इस्तेमाल करने से और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से। तो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एविडेंसेस विद आपकी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये है। उसके अलावा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थीसिस यानी कि किसी चीज़ पर आप रिसर्च करें, इसको हम थीसिस कहते हैं। इंट्रोडक्शन है, इसमें इंट्रोडक्शन होती है, पहले तो आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे कि व्हाट इज सेइंग एंड व्हाट इज आस्किंग एंड व्हाट द स्टेटमेंट इज। उसके बाद आप उसकी बॉडी प्रोग्राम पैराग्राफ्स बनाएंगे। बॉडी पैराग्राफ में आप स्टेप बाय स्टेप फ्लो में राइटिंग करेंगे। मैं भी आपको सैंपल का आर्गुमेंटेटिव ऐसे बता दूंगा। उसके बाद कंक्लूजन, एनी ऑफ द ऐसे, any of the descriptive essay, argumentative essay, compare and contrast essay, and any of the narrative essay, you write down the conclusion. That is your own thinking or someone's thinking, but you conclude it and you wind up that writing कि this is the ending note। तो यूं ना हो कि आपके argumentative essay में आप दोनों तरफ की फेवर और अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और आखिर में आपने कंक्लूड नहीं किया कि आप किस तरफ खड़े हैं। तो you have to clarify कि where would you go एंड विद इट। फिर उसके बाद क्या होता है, स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी कंपलसरी। अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं यार ये क्या हमें कैद खाने में डाल दिया है, यूनिफॉर्म क्या हो यार, इनफॉर्मल चले, हम कैजुअल पहन के जाएं, अपनी जीन्स पहने, टी शर्ट पहने। लेकिन यूनिफॉर्म, यूनी मीन वन, फॉर्म मीन, यानी सब बच्चे एक जैसे नजर आए, क्योंकि स्कूल का नाम है डिसिप्लिन। स्कूल आपको सिर्फ तालीम नहीं देता, आपको डिसिप्लिन सिखाता। इसलिए बच्चा घर में वो डिसिप्लिन नहीं सीखता, लाइन में खड़ा होना असम्बली में सीखता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना असम्बली में सीखना, किसी तमीज़ से बात करना स्कूल में। स्कूल का इन्वायरमेंट उसे वो चीज़ें सिखाता है जो घर में नहीं सीखता। तो इसीलिए एक जैसा यूनिफॉर्म पहनाया जाता है कि जब तमाम के यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्मिटी होगी तो उनके एक्ट में भी, उनकी परफॉर्म में भी, उनकी तमाम एक्शंस में भी यूनिफॉर्मिटी हो। जब उन्हें लाइनअप किया जाए तो लाइनअप हो जाए, जब खामोश रहने को कहा खामोश हो जाए, जब पढ़ने को कहा जाए पढ़ने का, जब खेलने, तो हर किसी की टाइम स्लॉट्स हैं। इसलिए बच्चे को बचपन से ही वक्त की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आज तो फ्री पीरियड मिलेगा, आज तो ये को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है हमारी। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ बेसिकली। एविडेंस, स्टडीज़ और स्कूल पॉलिसीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम कहते हैं दैट इज द पॉलिसी बेसिकली, तो यू कांट ब्रीच दोज पॉलिसीज। ओके, रोजेरियन आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज दैट रोजेरियन आर्ग्यूमेंट? दिस टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड बिटवीन अपोजिंग व्यूज, इट इज मोर बैलेंस्ड एंड लेस एग्रेसिव। इसमें एक बहुत ज्यादा बैलेंस बात की जाती है, अपोज भी होता है और उसमें कॉमन जो चीजें होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन डिटेल एंड दैट इज द स्ट्रक्चर बेसिकली। स्ट्रक्चर क्या है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में? पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे किसको? इशू को। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? इशू को। आज आर्गुमेंटेटिव ऐसे बस हमारा ये वाइंड अप हो रहा है। इंशाल्लाह आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैंने इन डिटेल समझा दिया है कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ या एनालाइज कहा जाएगा, किसी एक बात की फेवर में या उसके अगेंस्ट आपने उसको लिखना है, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे। लेकिन उसमें आपको दलाइल, एविडेंस डालने हैं, फैक्ट्स डालने हैं, एग्जांपल्स देनी है, सर्वेज, और आपने बिल्कुल सामने पढ़ने वाले को, रीडर को आपने परसू करना है। ओके, स्ट्रक्चर पे आ जाए। मेन स्ट्रक्चर क्या है आपका? इंट्रोडक्शन ऑफ इश्यूज।
पहले पैराग्राफ आप इशू को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इशू है क्या। अक्सर बच्चों को या अक्सर हमें, क्योंकि वी आर द सेकंड स्पीकर, हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो बहुत से बच्चों को वो स्टेटमेंट ही समझ नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द प्रॉपर स्टेटमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसी तरह आपको रीडर को भी समझाना है इंट्रोडक्शन ऑफ इशू। उसके बाद अपोजिंग व्यूज फेयरली एक्सप्लेन, पहले उसके खिलाफ वाले सारे एक्सप्लेन कर देने व्यूज, फिर उसका कॉमन ग्राउंड बताना है, फिर उसके अंदर कॉम्प्लीहेंड कंक्लूड करना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द एंडिंग नोट। कंक्लूजन माने नतीजा। ओके, हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक, वी हैव 2 minutes रिमेनिंग, तो लेट्स हैव अ लुक फॉर द सैंपल आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ओके, सैंपल ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ओके, सी दिस as I discussed earlier, and that I pick from that statement I pick from your model paper. It will be more convenient for you to understand easily. Let's see, it's just I'll take 1 minute more and then we will wind up our class, because in next class I will explain in detail. Okay, is fast food responsible for health issues among teenagers? So I would just explain the first paragraph, and then in the next class inshallah I would continue this topic. In today's fact-based world क्या है, आज हर इंसान को वाया वीडियो वाया पिक्चर हकीकत चाहिए। अभी जैसे ईरान और अमेरिका की और इजराइल की जंग चल रही है, तो दोनों तरफ से वीडियोस और एक दिखाई जा रही चीजें। लोग कहते हैं भाई हम बोले पे नहीं जाते, तो पीछे वीडियोस बताई जाती हैं कि इनका जहाज गिराया है या यहाँ स्ट्राइक हो गया है। तो दैट इज, दुनिया अब चलती है फास्ट पेस्ड वर्ल्ड पर। फास्ट फूड हैज बिकम अ पॉपुलर। अच्छा, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यानी हर चीज में इजी बिजी है। इंसान के पास टाइम नहीं है कि 2 घंटे कुकिंग करे, 3 घंटे कुकिंग करे, तो इंसान की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? फास्ट फूड को एक्सप्लेन कर रहा है कि फास्ट फूड इजाद कैसे हुई, बनी कैसे। फास्ट फूड का रीजन यही था कि इंसान की जिंदगी बहुत फास्ट हो गई, इंसान कम वक्त में ज्यादा काम करना चाहता है, तो फास्ट फूड दुनिया में यूरोप से आई। ये बर्गर्स पिज्जाज ये हमारे खाने नहीं है, ये बर्गर्स पिज्जाज वगैरह यूरोप और अमेरिका के खाने, क्योंकि वहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है कुकिंग का, वहाँ पूरी फैमिली जॉब करती है और वो अपने काम में जब लगे होते हैं तो वो इन चीज़ों में अपना टाइम सर्व नहीं करते थे, तो ये फास्ट फूड। लेकिन हम एशियन शुरू से ही होममेड खाते हैं, लेकिन अब ये कल्चर हमारे यहाँ आ चुका है, तो फास्ट फूड इसीलिए कहते हैं ये पॉपुलर चॉइस हो चुकी है बहुत, और ज़्यादातर टीनेजर्स इसको बड़ा प्रीफर करते हैं। तो इंशाल्लाह आई थिंक दिस इज द एंडिंग टाइम, योर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड, तो आई जस्ट वुड स्टॉप राइट नाउ because this is a really long topic, but I hope you understand argumentative essay in detail, and inshallah I would explain you 4 of these topics in the next class inshallah, and further more argumentative essay would be explained later on. Thank you very much, have a good day, God bless you.